So, very good evening, namaskar, salam, आदाब एंड अब अभी सोच रहे होंगे आप कि प्रत्युष सर बोलेंगे द क्लासेस स्टिल ऑन। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल यही बोलूँगा। द क्लास इज स्टिल ऑन एंड वी फिनिश्ड द लास्ट चैप्टर एज कीपिंग क्वाइट। आफ्टर दैट आई वाज नॉट एबल टू टेक आउट मच टाइम, but today I managed to take out some time, so we will be proceeding with our next chapter, which is the poets and pancakes. There are two things. Pancakes, as you all know, or some of you who may do not know, is a thin chapati like you can say things which are eaten just like a cake only, with the cake material, but instead of baking it is cooked over the griddle, which is griddle means tawa, right? So very popular in America, right? इस तरीके से दो तीन चार पांच बना के फिर उसके ऊपर कुछ चेरी एंड बेरी कंपोज डाल के और हनी एंड मेपल सिरप के साथ इन्हें खाया जाता है, जिन्हें हम अमेरिकन पैनकेक्स कहते हैं। ठीक, ग्रिडल पर या पैन में बने हुए केक्स, जिनको हम पैनकेक कहते हैं। तो आज का चैप्टर पोएट्स एंड pancakes, right? So, as you all know, there are many chapters from your book Flamingo, and this is chapter number 6, which is known as the Poets and Pancakes, written by Asokamitran. A.S. Yeah, South, not a show, it's Asoka Mitran, M-I-T-R-A-N. Okay, so this is the name of the writer. So poets, as you know, are beautiful people. मैं जिसे बुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। Right? So poets are beautiful people. This wonderful song, which has become a super hit by Zubin Nautiyal nowadays. So written by one of the greatest poets. So I have already told you that poets are beautiful people. Whatever we see as an ordinary blackboard, the poets may be seeing it as something else, right? So this was a Tamil writer who recounts his years at Gemini Studios in his book My Years with Boss, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India, right? Gemini Studios is supposed to be one of the most famous studios for Bollywood, for the Tollywood industry as well. If you want to find out more information, you can very well, if you have got interest. So he wrote this chapter, and he wrote about the two things, the pancakes, यहाँ पर सिर्फ pancakes, not American, and the poets. तो मैंने आपको पोएट्स और पैनकेक्स दोनों का अर्थ बताया। अब ये बड़ी अच्छी जुगलबंदी, एक बड़ा अच्छा तालमेल है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम कहता है द पोएट्स एंड पैनकेक्स, राइट? I'll just read out some notes of this chapter, poets and pancakes, so that you can understand practically कि what is going to happen in this particular story, right?
The chapter has been taken from the book My Years with Boss. Number 1, taken from the book My Years with Boss. हो सकता है किसी सर्वेंट ने, किसी पर्सन ने अपने ऑफिस शेड्यूल और अपने बॉस के बारे में लिखी हो. Let's find out. We'll find out. It is about his time when he worked in Gemini Studios. I told you. While he was working in Gemini Studios. ठीक है? In this story we learn about a lot of things relating to the film industry, especially the one in India. He first writes his take on the makeup department. Right? Point number 1. And there he is writing about the film. Film industry में सबसे पहले makeup department. Then he talks about, however, he makes fun of the looks the actors try under glaring lights. ठीक है? He makes fun. After that, we learn that Pancakes is actually the name of a makeup brand used by the Gemini Studios. ये जो आपकी पूरी मिथ है, इसको मैंने चेंज कर दिया. ठीक? Is the brand just like the makeup brands nowadays? The older ones, Maybelline, L'Oreal, and Nykaa nowadays, some little bit small, and Katrina Kaif has launched her own makeup brand probably. So at that time, around which this story belongs, this Pancake was the brand name of a makeup company. ठीक? A company which is making the makeup products. The lesson begins with Ashok Mitra telling us about Gemini Studios. We learn about the very popular makeup brand whose name was Pancakes. Then they order truckloads of such products. Then they go on to tell the readers about the troubles the actors and actresses face. ठीक है? Though we understand today only the great actor Anupam Kher has posted a picture onto his social media. I was just going through after my office work. I got some time, but for 5 minutes I just had a glimpse. So he posted a picture in his social media standing like this, and Anupam Kher getting 64, 65 years of age. But he looked in tremendous shape. I mean, he has a very fit body, which he showed, which he portrayed. So that means that being in the industry is not only important that you possess that acting skills. न सिर्फ आपको एक्टिंग करना और एक्टिंग स्किल्स की समझ और आना चाहिए, बल्कि आपको खुद को मेंटेन रखना, फिट रखना है. हेल्दी बॉडी के लिए तो है ही है, जो ऑडियंस आपको देखना चाह रही है उनके लिए. सो द लाइफ विच वी फील इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी वेरी easy. It is actually
at initial stage, later changes. ठीक है? How the lights used and how they used our makeup and make the actors look ugly. He wrote about the lights. Third number point. ये दोनों तरफ मैं लिख रहा हूं, ये फिल्म इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने क्या क्या लिखा, क्या क्या बताया। और अब ठीक है, अब तो नहीं लग रहा लाइट्स ये लोग। इधर मैं बता रहा हूँ कि स्टोरी उन्होंने किस बारे में लिखी है, और इधर मैं बता रहा हूँ वो किस किस बारे में, इंडस्ट्री के किस किस चीज के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। लाइट्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कैसे लाइट से हमारे एक्टर्स जैसे दिखते हैं उससे और ज्यादा बुरे दिखते हैं। The office boy in the makeup department is also described. He has a job to slap paint during crowd shooting on the faces of players. अब बताइए एक लड़के के बारे में जिसको हम लाइट बॉय कहते हैं, स्पॉट बॉय कहते हैं, जो कि फेस पेंट स्लैप पेंट करता था क्राउड शूटिंग के दौरान। क्राउड शूटिंग मतलब कि एक सीन लेना है, अमिताभ बच्चन खड़े हुए हैं और डांस कर रहे हैं, ये है बम्बई नगर या तो देखो हुआ, तो चारों तरफ ऑल द क्राउड which has been gathered around which has to be captured inside the camera, तो उसके ऊपर भी बस वो हाथ में एक स्लैप पेंट मतलब पच एक दो बार एक बड़ा सा पफ, एक बड़ा सा ब्रश, एक स्पॉन्ज सा लेकर के ऐसे पाउडर में पैनकेक वाले ब्रांड के पाउडर में डिप किया और लोगों के मुंह पे पट लगा दिया जिससे वो कैमरा में ठीक ठाक दिखे। जनरल पीपल। The author is a poet who joins the studio to become an actor. Very important point. The author is a poet who joins the industry. This one I am also rubbing. If you want to see, you can just rewind the video, pause it, and read it. Okay? I am moving ahead. The author himself is a poet who joins the studio to be an actor. ठीक, अब समझ में आ गया आपको कि पोएट्स कौन है, और जो दरअसल में पैनकेक्स हम खाने वाली बात कर रहे थे वो पूरी की पूरी बात ही बदल गई। वो पैनकेक्स खाने वाले पैनकेक्स ना हो करके एक मेकअप का बहुत बड़ा ब्रांड है जिसको वो पैनकेक्स के नाम से जानते हैं, जैसे लैक्मे, जैसे मेबेलिन, जैसे लोरियल, जैसे नाइका, उसी तरीके से पैनकेक्स, राइट? So the author is a poet who joins the studio to become an actor, screenwriter, director or lyricist. अच्छा, it is not fixed, ठीक है? या actor, या screenwriter, या director, या फिर अब कायदे से देखा जाए तो वो पोएट थे, उनके लिए लिरिसिस्ट बनना सबसे ज्यादा इजी है। लिरिसिस्ट इज द पर्सन हु राइट्स द सॉन्ग्स, ठीक है? द ऑथर थिंक्स दैट सुबु इज द वन हु ट्रबल्स हिम, एज सुबु इज अ ब्राह्मण, द ऑथर थिंक्स ही हैज एन अपर हैंड। सुबु शायद वही लड़का है या शायद कोई और है, अभी हम स्टोरी पढ़ेंगे तो पता चल
उसके बारे में ये लिखा हुआ है पोइट साहब ने कि वही एक ऐसा पर्सन था कि जिससे इनको दिक्कत होती थी। क्यों? कास्टिज्म की वजह से। Subbu is a perfect one for films and filmmaking. Is impossible without him. He is very friendly and hospitable. Subbu दरअसल में बहुत अच्छे हैं। फिल्म्स और फिल्म मेकिंग उनके रग रग में घुसी हुई है, अपना काम बहुत अच्छे से जानते हैं और फिल्म बनाना बिना उनके बड़ा ही मुश्किल काम मालूम पड़ता है। तो द ऑथर थिंक्स he has an upper hand. Another actor, Stephen Spender, makes a visit to Gemini Studios, but nobody recognizes him as he wasn't that famous. However, the author saw his name in one of the books and hence recognizes. कौन से बड़े एक्टर आए जिनको किसी ने पहचाना नहीं? स्टीफन स्पेंडर, जिनको इन्होंने हमारे जिनको हमारे अशोक मित्तल जी ने पहचान लिया। So the chapter is all about what happens in the film industry and how the entire world in itself works. चैप्टर पूरा का पूरा इसी बारे में है कि पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री में दरअसल में होता क्या है और कैसे अपने आप में ही ये पूरी अलग दुनिया है और लोग कैसे यहाँ पर गुजारा करते हैं, काम करते हैं और यहीं जीते हैं, यहीं मानते हैं। ठीक है, तो शुरू करें जी। ओके, so Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. Greta Garbo must have used it. Greta Garbo, a Swedish actress, in 1954, she received an honorary Oscar for her unforgettable screen performances. The Guinness Book of World Record named her the most beautiful woman who ever lived. I don't know, I've never heard of her. She was also voted as best silent actress of the country. Okay, शायद ज़्यादा गलती नहीं होगी। तो Greta Garbo must have used it. Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. पूरे ट्रकों भर के मेकअप मटेरियल आता था क्योंकि वह डेली इतने लोगों को यूज करना रहता था। और पैनकेक उसके ऊपर बेहतरीन ट्रक के ऊपर छपा हुआ बड़ा सा ब्रांड, बड़े हाई फाई ग्रेटा कार्बो ने यूज किया था, शायद इसीलिए उसका इतना नाम था। मिस गौहर must have used it. वैजंती माला must also have used it, but रति अग्निहोत्री may not have even heard of it. ठीक है, ये सब इंडियन एक्ट्रेसेस के नाम है। वैजंती माला को तो आप जानते ही हैं, तो गंगा जमुना बोल रहा था, बोल संगम होगा कि नहीं। तो द एक्ट्रेस एक्चुअली ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो गिविंग द शॉट्स ऑफ अ स्विमिंग पूल, एंड दैट वाज नॉट एग्जैक्टली अ स्विमिंग पूल, बेसिकली आई बिलीव इट must have been a pond, but to give such bold shots wearing swimsuit during those years was a very daring thing to do. And people, of course, when for the first time they saw somebody wearing so small clothes and bathing in the river, so they obviously felt happy, and they invested hundreds and thousands of rupees they must have invested to watch it. And obviously the movie must have become a commercial hit. So in the same manner, Rati Agnihotri is also one of the other actresses. How should I tell? You can Google Rati Agnihotri, forget it. We'll not waste time going over there. So she might not have heard about it because maybe the Pancakes company stopped making makeup material, or it belonged to some people who left for the heavenly abode. शायद उनकी डेथ हो गई, इसलिए वो कंपनी बंद हो गई, चल नहीं पाई। तो रति अग्निहोत्री मतलब जिस समय की ये कहानी लिखी हुई है उस समय के
हिसाब से नई एक्ट्रेस थी और वैजयंतीमाला थोड़ी पुरानी वेटरन एक्ट्रेस थी, तो वो यूज करती थी लेकिन उन्होंने यूज नहीं किया था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ यही निकल सकता है कि वो कंपनी बंद हो गई। The makeup department of the Gemini Studios was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stables। ये सारे एक्टर्स के एग्जाम्पल दे रहे हैं, नोट करते चलिए, लिखते चलिए, ढूंढते चलिए। रॉबर्ट क्लाइव्स, a dozen other buildings, ढेर सारी बिल्डिंग्स थी। पहली फ्लोर पे मेकअप डिपार्टमेंट था, जहाँ से हमारा मतलब है, यहाँ से हमारा संबंध है। 56, 57, 58 नंबर पेज पे आगे साहब, ठीक है भाई? ओके, सो इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज, अच्छा बाद में in the city are said to have been his residence for his brief life and even briefer stay in Madras. Robert Clive seems to have done a lot of moving, besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maid in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras. ठीक है? Madras nowadays is known as Chennai. At that time it was known as मद्रास, जबकि ये कहानी है। तो रॉबर्ट क्लाइव साहब के बारे में बात हो रही है। रॉबर्ट क्लाइव साहब ने शादी कर ली सेंट मैरी चर्च की एक मेडन से। मेडन अब a person who is working there in the church doing the social responsibilities, ठीक है? The makeup room had the look of a hair cutting salon with lights at all angles around half a dozen large mirrors, ठीक है? मेकअप रूम आपने देखा है स्टूडियोज का अक्सर मूवी में कभी कभार कैमरा लेके और घुस जाता है, तो उसे मूवीज में कभी कभार कवर कर लिया गया। एक बड़ा सा शीशा, शीशे के चारों तरफ ढेर सारे बल्ब, लाइट्स और कुछ और स्पॉटलाइट्स, तो पूरा मेकअप रूम स्पॉटलाइट्स और इससे भरा हुआ था। So you can, और ढेर सारे बड़े बड़े शीशे, of course, they were all incandescent lights. So you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. Incandescent, एक आपके कैमरा में इंस्टा पे, FB पे फिल्टर है जिस पे लिखा हुआ है incandescent light, मतलब जो नेचुरल लाइट होती है, जैसे अभी यहाँ इस रूम में है प्रॉपर लाइट होती है, उस लाइट के बराबर लाइट नहीं होती, ठीक है? उससे थोड़ी सी डिम। So you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by a Dharwar Kannadiga in an Andhra, a Madras Indian Christian, an Anglo-Burmese and the local usual Tamils, ठीक है? Note down कि he was succeeded, preceded, succeeded माने जैसे हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद हैज सक्सीडेड प्रणब मुखर्जी जी, लेट प्रणब मुखर्जी जी, सॉरी, उनके बाद वो आए। तो उसी तरीके से धरवार कन्नडिगा, ठीक, धरवार कन्नडिगा आंध्रा के एक इंसान, मद्रासी इंडियन क्रिश्चियन और एंग्लो बर्मीज ओरिजिन के, और कुछ लोकल तमिल के लोग। All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration.
AIR is All India Radio and Doordarshan, as you all know, DD1, DD National. इससे पहले इन लोगों ने अपने प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करना शुरू नहीं किया था, उसके भी पहले की ये बात, उसके भी पहले की ये कहानी बता रहे हैं. This gang of nationally integrated actually makeup men could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions. तो ये basically क्या समझ मिला है, potions और lotions. So, ये जो लोगों का गैंग था, कौन है ये? धरवार कन्नडिगा. कौन है धरवार कन्नडिगा साहब? वही मेकअप आर्टिस्ट है जो लोगों को मेकअप लगाया करते थे. वो और कुछ तमिल और कुछ मद्रासी लोग मिला जुला करके उनकी एक टीम थी, जो टीम वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकअप डिपार्टमेंट. ठीक है, तो ये लोग इतने काबिल थे, इतने बेहतरीन थे कि सीधे साधे साधारण आदमी को भी जब चाहे तो एक मॉन्स्टर, एक क्रिमिनल बना दे, और एक क्रिमिनल गंदे संदे फटे चेहरे के साथ आए हुए आदमी को भी मेकअप वेकअप लगा करके हीरो बना दे. इट्स ऑल द गेम ऑफ मैजिक with the help of pancakes, of course, the makeup brand, and some other potions and lotions. Those were the days of mainly indoor shooting, and only 5% of the film was shot outdoors. I suppose the sets and the studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. जो बात उन्होंने कही कि शायद वो लाइट्स और वो चीजें लोगों को और भद्दा दिखाने के लिए, जिससे और मेकअप इस्तेमाल करना पड़े, जिससे वो अच्छे लगे, मूवी के लिए प्रेजेंटेबल बन सके. A strict hierarchy was maintained. A strict hierarchy was maintained in the makeup department. Hierarchy बहुत जरूरी थी. जो सीनियर है वो सीनियर है, जो मेन है वो मेन है, जो असिस्टेंट है वो असिस्टेंट है. बहुत स्ट्रिक्ट थी. The chief makeup man made the chief actors and actresses ugly. जो मेन चीफ आदमी थे वो एक्टर और एक्ट्रेसेस को पाउडर मेकअप थोप करके पैनकेक्स कंपनी का बंदा बनाया करते थे. उनके सीनियर असिस्टेंट सेकंड हीरो और हीरोइन को बंदा बनाया करते थे. उनके जूनियर असिस्टेंट मेन कॉमेडियन को बंदा बनाया करते थे, और सो ऑन. इसी तरीके से जिंदगी आगे चलती रहती थी. The players who played the crowd were the responsibility of the office boy. Even the makeup department of the Gemini studio had an office boy. बड़ी बड़ा स्टूडियो था, उसमें भी एक ऑफिस बॉय था. ऑफिस बॉय इज अ गुड नेम. ऑफिस बॉय, टी बॉय, ये एक प्यून को बुलाने का एक सोफिस्टिकेटेड पढ़ा लिखा तरीका आज की तारीख तक फॉलो हो गया है. नाम बहुत पुराना है, लेकिन लोग प्यून है चपरासी यही बोलते. अब उसे ऑफिस बॉय बोला जाने लगा. ठीक है भाई, के जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट में भी ऑफिस बॉय था. ऑन द अदर डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जायंट वेसल एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स. एक बड़े से वेसल में ऐसे 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 गोल करके बड़े से डिब्बे बना करके और फिर छप 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 सब पे लगाया करता था. The idea was to close every pore on the surface of the face. The idea was to close every pore. Pore माने holes. सारे छेद, कटे फटे के निशान सबको कवर करने का मेन आइडिया था उस पेंट का. He wasn't exactly a boy. He was in his early 40s. Again, बॉय कहा गया तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. उस काम को, उस पोजीशन को ऑफिस बॉय कहा जाता है. आदमी की उम्र उसमें माने नहीं लगती. 40-45 साल के आदमी से बड़े. ठीक है. And he, having entered the studios years ago in the hope of becoming a star actor or a top screen writer, director or lyrics writer, he was a bit of a poet. शायद ये हमारे पोएट साहब खुद ही हैं जो अपनी बात
कर रहे हैं कि वो आए कि यहाँ पर एक्टर बनने या डायरेक्टर बनने या पोएट बनने या लिरिसिस्ट बनने, लेकिन बन गए फिलहाल एक मेकअप बॉय। और वो अपनी नजरों से बताते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री, फिल्मी दुनिया कैसी है। और ढेर सारे लोगों ने इसका डिस्क्रिप्शन, इसका उदाहरण, उल्लेख किया है, लेकिन ये हमारे जो पोएट साहब हैं शोकामित्र जी, ये उनकी आंखों देखी, उनकी जुबानी, उनके हाथों की लिखी हुई बात से, उनकी नजरों से हम देख रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री लगती कैसी है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर विल स्टॉप। जस्ट वन मोर पैराग्राफ। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज। मैं उन दिनों एक क्यूबिकल में काम किया करता था। बॉम्बे आज के तारीख के हिसाब से तब से ही बहुत एडवांस्ड है। आजकल जैसे ऑफिस क्यूबिकल्स होते हैं, वहाँ पर पहले से ऑफिस क्यूबिकल थे, ऐसे ऐसे पार्टीशन पार्टीशन पार्टीशन, एक छोटी सी टेबल, आपका छोटा कंप्यूटर, आपका एक छोटा सा प्रिंटेड बोर्ड जिस पे आप लिख सकते हैं, छोटा सा स्पेस, छोटी सी ड्रॉर जिसमें आप सामान रख सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा क्यूबिकल था फ्रेंच विंडोज के साथ। आई डिडंट नो at that time that they were called French windows. You can search on French windows किनको कहा जाता है। Seeing me sitting at my desk clearing up newspaper day in and day out, मुझे अपनी डेस्क पे बैठा देख करके न्यूज़पेपर फाड़ते हुए दिन रात। Most people thought I was doing next to nothing. आधे से ज़्यादा लोग ये सोचते थे कि अभी दिन भर करता ही क्या है, बैठ करके दिन भर पेपर पढ़ा करते हैं। सुबह जब देखो तो पेपर पढ़ रहा, शाम को देखो तो पेपर पढ़ रहा है, जबरदस्ती पेपर पढ़ने की व्यक्ति करता कुछ नहीं था। इट इज अनलाइकली, सॉरी, इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू। शायद हमारे बॉस ने भी ऐसा ही सोच लिया हमारे बारे में। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर। तो किसी को भी लगता था कि उसको कोई काम देना है, उसको कोई काम करवाना है, तो वो दौड़ता भागता हमारे क्यूबिकल के अंदर घुस आता था और हमें काम दे दिया करता था कि भैया ये लो तुम खाली बैठे हो, ये काम करो, ये लो तुम खाली बैठे हो, ये काम करो। So anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. लंबा चौड़ा एक लेक्चर झाड़ के मेरे ऊपर चले जाते थे। The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in the department fit only for barbers and perverts. उसने कहा कि मेरे जैसा एक काबिल आदमी, उसने सोचा कि नाले में जो आता है समझा करके चला जाता है। ये क्या तरीका है, हमारे जैसे पढ़ा लिखा क्वालिफाइड आदमी और उसको कोई भी आकर के समझा के चला जाए, तो ये क्या तरीका है, इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जिंदगी, ये दुनिया, मेकअप जो स्टूडियो है, ये सिर्फ नौवों के लिए, बाल काटने वाले लोगों के लिए और परवर्ट्स, you know the meaning of pervert, people who have bad intentions about others. It can be both ways, mostly used for women, but it can be for men also. ठीक है, THARKI, the Hindi meaning. ठीक है, soon I was praying for crowd shooting all the time. Nothing short of it could have saved me from his epics. तो मैंने कहा कि यार मुझे पेपर फाड़ने का, ये सब काम, किसी काम के लिए पेपर फाड़ा करते होंगे, मेकअप के और इसके लिए, लेकिन लोगों ने सोचा कि वो कुछ काम नहीं करते हैं, तो इनको ढेर सारा काम दो, इनसे ढेर सारा काम करवाओ। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि भैया कुछ अगर ढंग का काम नहीं मिला तो मैं तो ये काम दूंगा छोड़। जा करके उन्होंने अपने बॉस से भी कहा और उनसे भी कहा सर भाई आप मुझे कुछ ढंग का काम दीजिए, नहीं हो तो मुझे क्राउड को ही पेंट लगाने का काम दे दीजिए, क्योंकि लोग सोचते हैं, देखते ही मैं खाली बैठा और आकर के मुझे आलतू फालतू के काम दे देते हैं और लेक्चर सुना के चले जाते हैं। तो इसलिए उनको वो थप 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 स्लैब पेंट वाला काम दे दिया गया। ठीक, तो दिस इज इट टुडे, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू वांट टू join the class, be regular, be on time, right?
एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशंस वाली बेल दबा दीजिए और ऑल्सो शेयर द वीडियो। और कुछ अगर आपको और पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन के अलावा भी आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट? थैंक यू, बाय बाय।